welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is essential elements for a contract of pledge to be a valid contract of pledge. Guys, so far we have discussed Section 172 of the Indian Contract Act, which deals with the concept of pledge, who the pawner is, who the pawnee is. Yani ki these are the two different parties to a contract of pledge. And guys, in this particular video, we are going to discuss essential elements for a for a contract of pledge to be a valid one. Guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section below. So guys, let's get started with essential elements for a contract of pledge to be a valid one. I have already discussed in my previous video on Section 172 that there are two essential elements for a contract of pledge to be valid. First is that there must be a delivery or transfer of physical possession of goods from one person to the other person who is nobody but from pledger to the pledgee. And second important essential is that goods are delivered as a security. Yani ki the specific purpose for which goods are delivered is for security. So guys, if I begin with the first important essential, which deals with delivery or transfer of physical possession of goods, which is nothing but corpus, physical possession of goods from one person to the other person. Guys, let me make you one thing very clear, that subject matter either of contract of bailment or pledge, दोनों का subject matter is goods. यानी कि we deal with a movable property. When we talk of pledge, we talk of goods. Goods are nothing but movable property, something which is of marketable value and can fetch you price. उसको हम बोलते हैं goods. So if I talk about delivery of possession, possession as I've already told you, bailment पे हमने किया था that हमेशा always and forever possession is transferred and not the ownership. Possession की बहुत importance होती है. Possession and ownership are two different concepts, right? जहाँ पे ownership is the best title, वहाँ पे possession is possession is something different from ownership. So हमेशा in a contract of bailment or pledge there is a delivery or transfer of physical possession of goods from one person to the other person, right? So guys, this delivery of goods is the sine qua non of contract of bailment and pledge. मैंने आपको contract of bailment में भी बताया था. Both these concepts are very similar, guys. So you have got to understand what the contract of bailment is so as to understand contract of pledge. मैंने आपको बताया था कि contract of bailment में भी deliver करना goods को, उनकी possession को, goods की possession को deliver करना, transfer करना from one person to the other person is sine qua non of contract of pledge also. Sine qua non is something which is very important. For this concept to at least commence, delivery is important. जब तक आप अपनी goods को deliver नहीं करोगे तब तक bailment भी नहीं होगी और तब तक pledge भी नहीं होगा. As I've told you, if there is no delivery, there will be no pledge. Mere agreement to deliver, अगर आप agree कर लेते हो कि I'll be delivering you, that cannot, is not sufficient to constitute pledge. That cannot be termed as pledge. Pledge is always for consideration. I've told you, unlike gratuitous contract of bailment, pledge is always non-gratuitous. It means it is always for reward. It is always for consideration, something in return. अगर आपको banking institution से loan चाहिए, for that it is important that you have to keep something, any good as security to the bank. और आपको pledge, आपको लोन तभी मिलेगा जब आप किसी गुड को pledge करोगे. It means delivery of physical possession of goods is very much important, at least to commence this contract of pledge, or I can say it is sine qua non, at least to constitute pledge. Pledge को constitute करने के लिए important है, इसको at least commence करने के लिए pledge करना जरूरी है. Actual transfer is important. Now talking about delivery of goods, मैंने आपको कहा delivery of possession of goods. Goods भी मैंने आपको समझा दिया, possession is different from ownership. So यहाँ पे possession word को use करना बहुत important है. But if I talk about delivery, guys, there are two types of delivery which we have already discussed. Again हमने bailment में discuss किया, actual delivery and constructive delivery. Actual delivery, as the term itself indicates, is delivery in reality. जब आप actual में formal physical possession of goods दे देते हो. If you go to the bank, you wish to take a loan. आप बैंक में गए, आपने लोन लिया, अपनी ज्वेलरी को क्या करिए, प्लेज कर दिया. प्लेज करना मतलब सिक्योरिटी के तौर पे रखना, गिरवी रखना. जहाँ पे आप बैंक के पास गए, बैंक ने आपको क्या किया, लोन एडवांस कर दिया और उस लोन के बदले आपने अपनी ज्वेलरी को इन रियलिटी प्लेज कर दिया. दैट इज टर्म्ड एज एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स. आपने क्या किया, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स. आपने गुड्स की पोजेशन को इन रियलिटी डिलीवर कर दिया और लोन ले लिया कंसिडरेशन के लिए, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो. बट गाइज, इफ आई टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, many of my friends here might not be knowing कि constructive delivery क्या होती है. So let us take an example to understand constructive delivery. If you remember and if you have watched my previous videos on bailment, वहाँ पे हमने केक की example ली थी because वो best suited थी वहाँ पे.
और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इन केस ऑफ प्लेज विल बी टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल्स. हम DOT की एग्जाम्पल लेंगे गाइस. डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिफोर आई गिव दिस एग्जाम्पल, let me make you clear that document of title is nothing but a document which shows your ownership, your possession or your control over goods. अगर आपके पास किसी भी चीज़ का DOT है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, वो एक ऐसी डॉक्यूमेंट होगी जो आपके टाइटल को दिखाती है, योर पोजेशन, योर कंट्रोल एंड योर कंट्रोल, पोजेशन एंड ऑनरशिप ओवर दोज गुड्स. लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल गाइस, देयर इज अ गोडाउन, राइट, देयर इज अ गोडाउन, उसके अंदर गुड्स हैं जो वो स्टोर्ड है. देयर आर सर्टन गुड्स इन अ गोडाउन विच आर लॉक्ड. वो गुड्स जो है, वो गोडाउन जो है वो लॉक्ड है, उसकी एक की भी होगी. अब फॉर एग्जाम्पल आई गो टू अ बैंक टू अवेल अ लोन. इसी इलस्ट्रेशन को ध्यान में रखेंगे, इसी डायग्राम को. फॉर एग्जाम्पल दिस इज मी, आई गो टू अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू अवेल अ लोन. मुझे क्या चाहिए? लोन चाहिए. बैंक से ठीक है, हम आपको लोन देंगे. इस इलस्ट्रेशन में इन केस ऑफ एक्चुअल डिलीवरी मैंने क्या कहा था कि आई हैव केप्ट माई ज्वेलरी एज गुड्स फॉर सिक्योरिटी. मैंने सिक्योरिटी के तौर पे अपनी ज्वेलरी को रखा और मैं बैंक के पास रख के आ गई. दैट कैन बी टर्म्ड एज एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स. बट अगर जो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के इलस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे, इस यहाँ पे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ गोडाउन, उस गोडाउन की उसके अंदर बहुत सारी गुड्स भी हैं. आई हैव अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ दोज गुड्स. वो एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो मेरे टाइटल को दिखाती है कि येस दोज गुड्स इन दैट पर्टिकुलर गोडाउन आर माइन. मेरी ऑनरशिप है तो वो मेरे पास ही उसकी कीज है, तो उसकी पोजेशन भी मेरे पास है. आई हैव कंट्रोल ओवर दोज गुड्स केप्ट इन दैट गोडाउन, और उसका कंट्रोल मेरे पास है, विच इज नथिंग बट अ की टू दैट गोडाउन. अब गाइस क्या हुआ, मुझे बैंक के पास जाना था. I've gone to a bank and to avail some loan. Bank says you have to keep something, any good of yours as security so as to avail this loan. I have gone to the bank. मैंने क्या किया, बैंक के पास, या तो मैं बैंक को अपनी कीज दे सकती हूँ. गाइस लिसन टू दिस पॉइंट वेरी अटेंटिवली. अगर मैं बैंक को अपनी कीज देती हूँ गाइस, दोज कीज टू दैट गोडाउन आर नथिंग बट सिम्बॉलिक ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. सिम्बॉलिक ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वो जो कीज है वो एक सिंबल है कि मैंने अपनी डिलीवरी, मैंने अपनी क्या किया, आपको गुड्स को डिलीवर कर दिया. अगर मैं उस गोडाउन की कीज बैंक के पास रख देती हूँ, वो अंडरस्टूड है कि उस गोडाउन में जो भी कुछ है वो किसका हो चुका है? बैंक का, यानी कि पोजेशन. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑनरशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट पोजेशन ऑफ गुड्स. यहाँ पे ऑब्वियसली आई कैन नॉट पिक दैट गोडाउन अप और मैं बैंक के पास रख के नहीं आ सकती. सो व्हाट कैन आई डू इज कि मैं वहाँ की जो कीज हैं विच इज सिम्बॉलिक ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वो मैं कीज बैंक के पास रख के आ सकती हूँ. या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, और फॉर दैट मैटर जो गुड्स आपके गोडाउन में स्टोर्ड हैं, उन गुड्स का जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है विच इज शोइंग माई टाइटल टू दोज गुड्स, माई ऑनरशिप, माई पोजेशन, माई कंट्रोल टू दोज गुड्स, आई कैन गो टू द बैंक एंड आई कैन कीप दोज पेपर्स, दोज डॉक्यूमेंट्स विद द बैंक. गाइज प्लेज में ध्यान में रखना, प्लेज में DOT, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल फॉर्म्स अ वैलिड प्लेज. Nobody can question document of title forms a valid pledge. In case of constructive delivery of pledge, documents of title एक valid pledge होता है. So I can keep my documents, I can keep my papers with the bank. और अगर कल को I fail to repay that loan back to the bank, बैंक क्या कर सकते हैं? Either I have told you previously, बैंक यानी कि this pledgee has two remedies available. बैंक can either retain those documents of mine, जब तक मैं बैंक को उसका लोन वापस नहीं करूंगी, या तो बैंक उसको रिटेन करके रख सकता है, विदहोल्ड करके रख सकता है. बिकॉज जब तक मेरे गोडाउन की कीज या उस गोडाउन में जो पेपर्स हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास है, वो मेरे यूज का नहीं है. सिंस आई हैव आई डोंट हैव द टाइटल विच इज शोइंग माई ऑनरशिप, वो किसके पास है? बैंक के पास है. इट मीन्स अगर मैं बैंक को उसका लोन वापस नहीं करूंगी तो बैंक उसको अपनी ऑनरशिप में लेके आ सकता है. सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज वर्क्स. यही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है. कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि इट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम माई एक्ट, मेरे एक्ट से कंस्ट्रक्ट हो गया. एक्चुअल में आई हैव नॉट डिलीवर्ड दैट गोडाउन. मैंने जैसे कि ज्वेलरी बैंक के पास रखी थी, इन रियलिटी इन एक्चुअल मैंने कॉर्पस, फिजिकल पोजेशन बैंक को नहीं दिया. अनलाइक एक्चुअल डिलीवरी, मैंने क्या किया, एक सिंबल which is symbolic of constructive delivery, be it a key or a document of title, मैंने बैंक के पास रख दिया as a pledge and it constitutes a valid pledge. यही होता है DOT का मतलब, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. वो तो गोडाउन की, चाहे आप कीज ले लो, चाहे आप उस गोडाउन में पड़ी गुड्स की डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ले लो, दोनों ही क्या है? सिम्बॉलिक है ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. दे आर सिंबल्स शोइंग कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू द प्लेजी, फ्रॉम मी टू दैट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. आई होप गाइस आपको क्लियर हो चुका है. इट मीन्स कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को अगर मैं रिपीटेड करूं तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है कि गुड्स दे रिमेन वेयर दे आर. देयर इज नो चेंज गाइस, इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, देयर इज नो चेंज इन दी
पोजीशन ऑफ द गुड्स, दे आर वेयर दे वर, जहाँ पे थी वहीं पे हैं, गडाउन जहाँ पे है वहीं पे था, उसकी गुड्स गडाउन में जहाँ पड़ी थी वहीं पे हैं, बट समथिंग हैज टेकन प्लेस विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द पोजेशन ऑफ दोज गुड्स टू सम अदर पर्सन। पहले वो मेरी पोजेशन में थे क्योंकि उसकी कीज और उसका डीओटी मेरे पास था, but something has taken place. Goods are where they were. It is a point to be noted. Unlike actual delivery, goods are where they were. पहले अगर मैं एक्चुअल डिलीवरी की बात करूँ तो वो ज्वेलरी मेरे पास मेरे घर पे मेरे लॉकर में थी, लेकिन वो बैंक के पास चली गई. दे हैव एक्चुअली बीन डिलीवर्ड टू द बैंक. बट इफ आई टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, उसमें क्या होगा, गुड्स आर वेयर दे वर, वहीं पे है गोडाउन, वहीं पे है गुड्स. आई कैन नॉट पिक देम अप, और मैं बैंक के पास नहीं छोड़ के आ सकती. आई कैन ओनली गिव सर्टन सिंबल्स which is constructive of constructive delivery, symbolic of constructive delivery, be it keys or document of title. तो इसमें ऐसा ही होगा कि goods they remain where they are, but something has taken place which has the effect of putting their possession from the pledger to the pledgee. अब उसकी possession pledgee के पास आ चुकी है, जबकि उसकी position वहीं पे है जहाँ पे पहले थी. Something has taken place जिससे क्या हुआ, उसका लीगल कैरेक्टर चेंज हो गया. पहले वो मेरी थी बट अब वो बैंक की हो चुकी है. देयर इज अ चेंज इन दी लीगल कैरेक्टर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स. सो आई होप गाइज आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है. एंड गाइज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को ही हम हाइपोथिकेशन बाय प्लेज बोलते हैं. एक और इलस्ट्रेशन देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार आपने देखा होगा कि देयर आर अलॉट मेनी मोटर व्हीकल्स, फॉर एग्जाम्पल ट्रक. दोज मोटर व्हीकल्स आर हाइपोथिकेटेड. ऐसा लिखा होता है कि दिस मोटर व्हीकल इज हाइपोथिकेटेड बाय द बैंक. बीट सम प्रॉपर्टी, बहुत बार कोई प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया जाता है और उस पर हाइपोथिकेशन लिखा जाता है. हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज एंड प्लेज, तीन टर्म्स होती हैं. प्लेज और मॉर्टगेज में मैंने आपको पहले ही डिफरेंशिएशन बताया था इन माय प्रीवियस वीडियो कि प्लेज हमेशा मूवेबल गुड्स का होगा. गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी. लेकिन जब आप अपने घर को, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अपने किसी लैंड को प्लेज करते हो, उसको आप मॉर्टगेज बोलते हो. मॉर्टगेज करना भी होता है गिरवी रखना, बट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को. Talking about hypothecation, guys, hypothecation is nothing but constructive delivery of goods. अगर आप constructive delivery को अपने माइंड में रखते हो, आपको hypothecation याद रह जाएगा. Hypothecation is nothing but a special kind of pledge. होता वो pledge है. Pledge is a special type of bailment and hypothecation is a special type of pledge. आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है. Pledge किस तरीके से bailment है वो मैं अपनी previous वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ. Hypothecation is a special type of pledge. अब इसको स्पेशल टाइप ऑफ प्लेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये प्लेज तो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो एक्चुअली डिलीवर नहीं होता. अगर मेरे प्रॉपर्टी को या मेरे ट्रक को, मेरे किसी मोटर व्हीकल को बैंक ने प्लेज कर लिया, या फिर मेरे गोडाउन को, जो मैंने आपको एग्जांपल दी, गोडाउन इज नथिंग बट प्रॉपर्टी, उसको बैंक ने प्लेज कर दिया, तो हम अपने व्हीकल्स को उठा के बैंक के पास छोड़ के नहीं आ सकते. व्हीकल्स दे रिमेन वेयर दे आर, बट समथिंग हैज टेकन प्लेस विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग दैट व्हीकल्स पोजेशन from this person to this person. यानी कि लीगल कैरेक्टर ऑफ पोजेशन ऑफ दोज गुड्स हैज चेंज. जहाँ पे वो पहले मेरी चीज हुआ करती थी, अब वो बैंक की हो चुकी है. ये होती है हाइपोथिकेशन. हाइपोथिकेशन एक प्लेज है, लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ प्लेज है क्योंकि वो एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोथिकेशन. आई होप गाइज आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. Still, if you have any doubts, please feel free to comment in the comment box. And last but not the least, हमने एक point डिस्कस किया, which is फर्स्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल हम डिस्कस कर चुके थे. देयर इज डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन. सेकेंडली, दोज गुड्स मस्ट हैव बीन डिलीवर्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और वो स्पेसिफिक पर्पस अनलाइक बेलमेंट, यहाँ पे प्लेज में हमेशा सिक्योरिटी का ही काम करते हैं. सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आप रखते हो. दिस पर्सन कैन नॉट पुट देम टू यूज. वो अपना यूज नहीं रख सकते. बीट मनी लेंडर और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो खुद यूज नहीं कर सकते. सिर्फ एक सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं कि कल को इफ इन केस दिस पर्सन डिफॉल्टेड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन विच इज नथिंग बट टू रिपे दिस लोन बैक टू द बैंक. अगर वो ये नहीं करता तो बैंक के पास टू रेमेडीज अवेलेबल होती हैं, ईदर टू एक्सरसाइज योर राइट ऑफ लीन और टू exercise your right of sale. You can sell those goods which has been kept as security after giving reasonable notice to the pledger. I hope guys I have made myself clear. So see you in next video. Till then, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.